Hello dear student, welcome once again in my class Priya Ki Path Shala. We are in the chapter of sexual reproduction in flowering plant and we have done about the formation of male gametophyte and the female gametophyte. Both these gametophyte which are produced are non-motile. So, for the fertilization process, they have to be brought together by any mean or any mechanism. Now, what does this mechanism is known as? This we are going to study today, and this mechanism is known as the pollination. Yes, so transfer of pollen grain to the stigma of a pistil is termed as the pollination. See, in lower plant, you have studied earlier that male are motile having the flagella and female is non-motile. But in higher plant or in angiosperms, the male and female, they both are non-motile. ये यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं. मूव करने के लिए यानी कि फर्दर अगर हमको प्लांट में आगे जाना है, फर्दर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है जिसके बाद ही न्यू प्लांट बनेगा. तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक पहुँचने के लिए एक मेन मैकेनिज्म नेचर ने बनाई है. दैट मैकेनिज्म इज नोन एज द पॉलिनेशन, in which transfer of pollen grain to the stigma of a plant pistil is termed as the pollination. Now this pollination is of two types. First is the self-pollination and second is the cross-pollination. This self-pollination, as you know very well, that transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower or the different flower from the same plant. Okay, so self-pollination, this we can understand by this diagram in which transfer of pollen grain, आप ये देख रहे हैं, these are the anther और यहाँ से pollen grain release हो रहा है और anther से pollen grain जाते जाते उसी flower के stigma के pistil के stigma पर गिर रहा है. इसे भी self-pollination कहते हैं. एंड उसी फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके भी गिरेगा तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ दिस सेल्फ पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. दिस ऑटो मीन्स सेल्फ एंड दिस गैमी मीन्स मैरिज, गैमोस. ओके, सेल्फ गैमोस मीन्स होता है मैरिज, ऑटोस मीन्स होता है सेल्फ. In this pollination is of this. In this diagram you are watching that the pollen of the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower. That's what is known as self marriage. एक ही flower के अंदर transfer हो गया है, self marriage में आ गया है. This may be occur by the various three methods. First is chasmogamy, second is cleistogamy, and third one is homogamy. See, this chasmogamy and cleistogamy are more or less same, but the difference between these two, that in chasmogamous flower this is occur like this only. जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होता है. बट इन क्लीस्टोगैमी की बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है दैट क्लीस्टोगैमस फ्लावर आर क्लोज्ड. ये वो फूल हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहेंगे. तो इनके पास सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा और कोई मेथड नहीं है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन आगे हो सके. So cleistogamy example we have oxalis, we have voila. Voila is also a plant. Okay, so then दोनों cleistogamous के example हैं. इसकी खास बात नोट करने वाली जो है वो ये है कि these flower are closed, never open and most importantly bisexual. Obviously बात है, अगर वो unisexual flower होता तो close होने के बावजूद भी उसमें self pollination नहीं हो पाता. लेकिन चूंकि वो bisexual flower है, means plant के ही एक ही flower के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं, तो वो आराम से self pollination करने में सक्षम है. Okay, now third one is the homogamy. In this homogamy, anther and stigma of the bisexual flower of some plant mature at the same time. Yes, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो एंथर और स्टिग्मा को एक ही टाइम पे मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है. सपोज अगर एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा इज दिस, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा.
अगर एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया है लेकिन स्टिग्मा उसको अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, उसको लेने की स्थिति में ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. Okay, so in case of a homogamy, it is also a bisexual flower. In this, both male and female part of a plant mature at the same time, at the same level, and they are brought together by help of bending. या तो हो सकता है फ्लावर बेंड हो जाए, या तो हो सकता है पिस्टल जो एंथर है, जो फिलामेंट है वो बेंड हो जाए, कुछ भी बेंड हो जाए, या क्या फोल्डिंग हो जाए और सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर हो जाए. Okay, so in case of a homogamy, example is Mirabilis jalapa or 4 o'clock plant. Very important question for your examination point of view, that what is the biological name of 4 o'clock plant? That is Mirabilis jalapa. Okay, so in self pollination in autogamy we have three kind of a type. is chasmogamy. Again इसका example oxalis ही है, लेकिन इसमें flower open होते हैं. Cleistogamous flower are those flower which never open in their life cycle. Example is oxalis or viola. And homogamous flower or homogamy is a kind of a flower in which both anther and stigma they mature at the same level, and by the means of bending or folding they come close to each other. अब आप ये देख रहे हैं कि इन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. इसी सेल्फ पॉलिनेशन का सेकेंड वी हैव इज चिटोनोगैमी. इन दिस चिटोनोगैमी द फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल. सबसे पहली बात तो यही है. ओके, जो ये फ्लावर होंगे ये क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे. इसका मतलब क्या होगा? मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा. ओके, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. आप ये देख रहे हैं, एक फ्लावर ऊपर है, एक फ्लावर नीचे है, तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है. लेकिन इसमें क्या होगा कि मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा. बायसेक्सुअल नहीं होंगे वो. यही जिटोनोगैमी की खास बात है. अगेन जिटोनोगैमी, इसका जो जिटोनोगैमी है इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो हम ले सकते हैं पपाया प्लांट. पपाया प्लांट इस क्या होता है हमारा फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है. मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. दिस जिटोन मीन्स नेबर. ओके, दिस जिटोन मीन्स नेबर एंड दिस गैमोज मीन्स मैरिज. तो आपने देखा कि नेबरिंग फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज जिटोनोगैमी. एंड अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज ऑटोगैमी. तो ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ मैरिज, जिटोनोगैमी मीन्स नेबर मैरिज. In this diagram you are easily watching. Now let's move to the cross pollination. As the name denote, cross pollination is the transfer of pollen grain from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant. By this diagram, okay, in this we have one plant, we have another plant, and in this diagram you are watching that anthers release the pollen grain. जो anther है उनसे pollen grain release हो रहे हैं, और ये pollen grain by means of any other external factor they are transferring from one plant to the different plant. Okay, and this also known as the xenogamy. xenogamy के नाम से भी इसको हम जानते हैं. This xenogamy के नाम से भी इसको जाना जाता है. This xenos means strange now. Strange का मतलब हो गया different plant. Okay, this geno stand for the strange and this gamos stand for the marriage. So xenogamy is the transfer of pollen grain for flower from one plant to the another plant or different plant. That's why it is known as xenogamy or strange marriage or different species or different plant. ओके, नेक्स्ट मूव टू द अनदर टॉपिक दैट अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन में इतने फायदे हैं तो इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान जरूर होंगे. लेट्स गेट टू डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सो फर्स्ट इज द एडवांटेज. सी, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर. उसी प्लांट के उसी फ्लावर में हो रहा है, इट मीन्स देयर इज एंश्योरिटी. यहाँ पे एंश्योरिटी है कि पॉलिनेशन हर हाल में होगा, हर हाल में होगा. सो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेकेंड, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द लाइन. चूंकि एक ही फ्लावर से उसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है या सेम प्लांट के फ्लावर में ही ट्रांसफर हो रहा है, सो प्योरिटी बिल्कुल कंफर्म है कि वो जिस प्लांट का हमने लिया है वो उसी प्लांट का ही हमको न्यू प्लांट बना के देगा आगे आने वाले स्टेप्स में.
सो प्योरिटी इज मस्ट इन सेल्फ पॉलिनेशन, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. इफ यू वांट टू प्योर लाइन, यू वांट टू गो टू द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, नो नीड टू पोजेस द डिवाइसेस. यस, अभी आपने देखा था कि क्रॉस पॉलिनेशन में यहां से यहां ट्रांसफर होने के लिए इसको कुछ ना कुछ डिवाइसेस की जरूरत जरूर पड़ती. एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे वी डोंट नीड द एक्सटर्नल एजेंट और वी डोंट नीड द अदर डिवाइसेस लाइक हमको खुशबूदार फूल नहीं चाहिए, या हमें ऐसे फूल नहीं चाहिए जिसमें नेक्टर बहुत ज़्यादा हो, या हमें ऐसे फूल नहीं चाहिए जिसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स व्हाइट कलर के होते हैं. अब व्हाइट कलर के होंगे तो उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, नेक्टर नहीं चाहिए. उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा सेल्फ पॉलिनेशन. And next last one is the no need to produce the large number of pollen grain. थोड़े से भी pollen grain होंगे, बेंड हुआ, एंथर बेंड हुआ, फिलामेंट बेंड हुआ और स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, pollen grain की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती है इसमें. लेकिन अब एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. फर्स्ट इज दी प्रोजेनी कॉन्टिन्यूसली गेट्स वीकर. अगर बार बार एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होगा, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसकी प्रोजेनी है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? घटते जाएंगे और वो भी क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे. सेकेंड, लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन. आपने पढ़ा था कि जब भी कभी भी इंटर क्रॉसिंग होती है, आपस में क्रॉसिंग होती है, तो जब वेरिएशन नहीं होता है. लेकिन अगर कभी भी इंट्रा क्रॉसिंग होगी, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज में क्रॉसिंग होगी, तो चांसेस ऑफ वेरिएशन बढ़ेंगे और जहां वेरिएशन बढ़ा वहां हमेशा न्यू स्पीशीज का जन्म होता है. ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि वेरिएशन ही होगा तभी न्यू स्पीशीज जन्म लेंगी. थर्ड वन is disadvantages. Continued self-pollination result in the breeding depression. Yes, again आपकी जो प्योरिटी है वो प्योरिटी तो बनी रहेगी, लेकिन जो ब्रीडिंग जो नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी. ओके, सो again a question in an exam that what are the various advantage और disadvantage. एडवांटेज में जरूर ध्यान रखिएगा आप कि एंश्योर तो कंफर्म है कि जब भी पॉलिनेशन होगा हमेशा चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे. दूसरा क्या है? प्योरिटी मस्ट होगी. इसकी खास बात ये होगी कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जो भी हमें प्लांट मिलेगा दैट विल बी कंप्लीट प्योर, नॉट हाइब्रिड. यस, हाइब्रिड प्लांट नहीं मिलेगा, प्योर प्लांट मिलेगा हमको. देन नो नीड टू पोजेस दी एनी डिवाइसेस. प्लांट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसका यही है कि वेरिएशन ही नहीं होगा तो नई स्पीशीज नहीं बनेंगी. Okay, now the cross pollination mechanism which you have read earlier is possible only with the help of some agent or pollinator जिनकी हम बात करते हैं. So cross pollination or xenogamy or strange marriage occur only with the help of some external agent, क्योंकि इसके बिना क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है. आपने देखा था एक फ्लावर के, एक प्लांट से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा था. अब यहां से यहां ट्रांसफर होने के लिए इसको कुछ ना कुछ एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जिन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेटर के नाम से जानते हैं. Now these pollinator are of two type. First is the biotic agent or biotic agencies and third one is the abiotic agencies. As you know very well, अगर हमने biotic के बारे में बात करा है, इसका मतलब है we are discussing about the living organism और living pollinator. एंड अगर हम एबायोटिक एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है नॉन लिविंग पॉलिनेटर और नॉन लिविंग एजेंट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस नेम. फर्स्ट इज दी, अगर वो एजेंट इंसेक्ट है, अगर वो एजेंट इंसेक्ट है तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली. एंटो मीन्स इंसेक्ट, फिली मीन्स पॉलिनेशन. अगर वो बायोटिक एजेंट बर्ड है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली. ऑर्निथो मतलब बर्ड, अगेन फिली मतलब पॉलिनेशन. अगर वो एजेंट बर्ड में हमारा आता है बैट, चमगादड़, ठीक है, तो बर्ड में अगर हमारा क्या आता है? बैट आता है. बैट एक क्या है? बर्ड नहीं होके मैमल है, तो हमारा क्या होता है? वो कायरेप्टेरोफिली. बैट इज द मैमल, नॉट अ बर्ड. ओके, तो उसको क्या कहते हैं? कायरोप्टेरोफिली मीन्स बैट्स. नाउ इन केस ऑफ एबायोटिक एजेंट, अगर हमारा एबायोटिक एजेंट विंड है, हवा, हाँ आपने देखा होगा अक्सर समर्स में जब लू चलती है तो बहुत सारे आपको पॉलन ग्रेन कह सकते हैं, आपको उड़ते हुए मिलते हैं, यहाँ वहां गिरते हुए मिलते हैं, स्पेशली गेहूं के सीजन में.
मक्का भुट्टा आता है तब भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अगर विंड हमारा एजेंट है तो दैट इज नोन एज एनिमोफिली, एनिमो मीन्स विंड। अगर हमारा एजेंट वाटर है, पानी है, पानी के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिलस प्लांट। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ हाउ cross pollination is occurring with the help of these pollinator. Bye bye and have a nice day.